Welcome back, my dear students of grade 6. In the last video, we have studied about the second largest continent, that is Africa. और आज हम क्या करेंगे? Today we will study the third largest continent, that is North America, and the fourth largest continent, that is North America. We will study about their location and the features. Let us start today's work. This is the world's third largest continent, discovered in the 15th century. ये सब थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसको कब डिस्कवर किया गया? 15th century में. Mainly located in the northern hemisphere, the continent is enclosed by Arctic Circle in the north, and in the south it extends down to a point just above the equator. ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है पूरी तरह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और इसके आसपास कौन से वाटर बॉडीज़ हैं? दैट इज़ आर्कटिक सर्कल, अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन. दैट इज़ मे बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ मैप. एंड इस कॉन्टिनेंट को 15th सेंचुरी में कोलंबस ने डिस्कवर किया था. क्लियर? एक्चुअली क्या था, शुरू में किसी को किसी भी लैंड एरिया के बारे में नहीं पता था कौन सा कॉन्टिनेंट या लैंड मास कहाँ पर है. वो एक बार इंडिया को डिस्कवर करते हुए कि इंडिया को डिस्कवर करना है, इसलिए कोलंबस इंडिया को डिस्कवर करते हुए कहाँ पहुँच गया? अमेरिका में. तो उसे इसने इंडिया का नाम दिया, पर एक्चुअली वो इंडिया नहीं था, दैट इज़ अमेरिका. तो उसने उस समय जिस लैंड एरिया को डिस्कवर किया दैट इज़ नोन एज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. क्लियर? दिस इज़ आवर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका. और नॉर्थ अमेरिका, एज यू कैन सी इन दिस वर्ल्ड मैप, entirely lie in the northern hemisphere. और थोड़ा सा इक्वेटर, जहाँ पर इक्वेटर है दैट इज़ द सेंटर लाइन ऑन द अर्थ, इक्वेटर तक एक्सपेंडेड हो रखा है, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका. द मेन फीचर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अगर आप जहाँ पर देखें तो इन द नॉर्थ साइड, ऊपर वाली साइड क्या होती है? नॉर्थ. तो नॉर्थ साइड में क्या है? आर्कटिक ओशन. On the west side Pacific Ocean, and on the east side Atlantic Ocean. Clear? And the other relief features are the Rocky Mountains in the North America and Appalachian Mountains in the North America that affects the climate and the vegetation of North America. Clear? Next, the Isthmus of Panama, on which the Panama Canal has been built, links it to the South America. Isthmus, आपको याद है बेटा, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था. व्हाट आर द isthmus? Narrow passages of land that connects the two land masses and separate the largest water body. That is known as isthmus. Make it clear again. This is our इस्थमस. और जहाँ पर एक पनामा इस्थमस है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है. नैरो पैसेज ऑफ लैंड. क्लियर? द टू मेजर रिलीफ फीचर्स, एपलेचियन इन द ईस्ट एंड रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट, शेप इट्स क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, एंड रिवर्स लाइक मिसिसिपी, मिसूरी एंड कोलोराडो ड्रेन दिस कॉन्टिनेंट. और जहाँ की जो मेन रिवर्स है वो कौन सी है? मिसिसिपी एंड कोलोराडो. A major part of the continent is covered by two countries, Canada and United States. Most of the part जो आपका नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर मेन कंट्रीज कौन सी हैं? कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट. द कैरिबियन आइलैंड्स एंड द लैटिन अमेरिका आर लोकेटेड इन इट्स साउथ. कैरिबियन आइलैंड्स और लैटिन अमेरिका दैट इज़ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साउथ साइड में लोकेटेड है. मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ मैप. See in this map, these are the main rivers that drain this continent, that is Mississippi,
Missouri and the Colorados. These are the main rivers that drain the North America. See in this map, this is Canada and United States. As you see in the map, most of the part of the North America is covered with two countries, Canada and United States of America. Clear? And here there are the Caribbean islands जो नॉर्थ अमेरिका के साउथ साइड में लोकेटेड हैं, और लोअर पार्ट दैट इज लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका that also lies in the south side of North America. That's all about the North America. Let us study about South America. South America. It was discovered along with the North America in the 15th century. Most of the South America lies in the southern hemisphere. It is the fourth largest continent in the world. This continent is mainly located in the southern hemisphere except for a small part which lies in the northern hemisphere. नॉर्थ अमेरिका को भी 15th सेंचुरी में ही डिस्कवर किया था, और किसने डिस्कवर किया था? कोलंबस ने। और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इसका है वो साउथ साइड, साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, और कुछ पार्ट इसका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका. The Andes, the world's largest range, its western boundary. जो लार्जेस्ट माउंटेन्स हैं दैट इज़ एंडीज़, वो वेस्ट साइड की इसकी बाउंड्री बनाते हैं. दैट वी विल मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ मैप. ऑन इट्स ऑल साइड दिस कॉन्टिनेंट इज बॉर्डर बाय वाटर बॉडीज. इसके सभी साइड पर वाटर बॉडीज हैं. अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट एंड कैरिबियन सी इन द नॉर्थ. The Antarctic Ocean to its south. The Amazon River flowing in the north is the world's largest river. The Brazilian highlands, Guiana Plateau and the Patagon highlands are the dominant landforms. Let us make it all these relief feature with the help of map. चलिए देखिए इस मैप में. This is our South America. अगर आप मैप में देखें, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर. क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड सम पार्ट, दिस पार्ट इज लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. और इसके सभी साइड पर वाटर बॉडीज हैं. तो जहाँ पर देखो वेस्ट साइड में है पैसिफिक ओशन, और यहाँ पर आपका है कैरिबियन सी नॉर्थ साइड में. इधर आपका ईस्ट में अटलांटिक ओशन, और नीचे साइड आपका है अंटार्कटिक ओशन. क्लियर? तो हर एक साइड में वाटर बॉडीज हैं. और जो मेन जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है दैट इज एंडीज माउंटेन, वो इसकी वेस्ट साइड की बाउंड्रीज को बनाती हैं. क्लियर? और लार्जेस्ट रिवर अमेज़न बेसिन, अमेज़न रिवर भी इसी जहाँ पर साउथ अमेरिका में ही फ्लो करती है. अनदर रिलीफ फीचर दैट इज़ द हाईलैंड्स. ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स ईस्ट साइड में है, पेंटागन साउथ साइड में, एंड द गुयाना हाईलैंड्स दैट लाइज इन द नॉर्थ साइड ऑफ द साउथ अमेरिका. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट साउथ अमेरिका. I hope all of you understand about North America and South America and their location. In the next video, we will study about Antarctica and Europe. Thank you for watching the video.